Hello everyone, I welcome you all in this video. In this video, we are going to discuss about the different types of the gate problems that has been asked previously in the gate exams on the metal cutting. And just I want to brief you about what this all about, what these videos is all about, and what I'm doing in this video. So in this video, I'm taking the numerical problems which is asked from 2001 onwards up to 2020. Okay, so total from the metal cutting till now in this region, in this zone, uh, in 20 years, like around 40 to 41 problems has been asked on the metal cutting. Okay, and like when this gate exam was of 100 marks, right now is also 100, but when completely mechanical engineering was asked in 100 exam, 100 marks, that time around 5 to 6 marks, 5 to 6 marks has been asked in the gate exam from the metal cutting. Okay, now when the mechanical engineering is bring to the 70 marks, remaining 15 is mathematics, and 15 is aptitude and English and reasoning. Okay, so now out of 70 marks, at least 2 to 3 marks, if you will check these question paper, then at least 2 to 3 marks has been asked every time in the gate exam on the metal cutting. Okay, so uh, why I started this video, because metal cutting is very easy in manufacturing. Okay, and metal cutting, like जब आप फॉर्मूला डिराइव करोगे, एंड आप अगर फॉर्मूले देखे होंगे आपने या फिर डिराइव किए होंगे, तो डिराइव करना भी इतना लेंदी है, बट ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है. कॉन्सेप्ट जस्ट इनिशियली है, देन यू हैव टू फॉलो द मैथमेटिक्स. एट द एंड यू विल गेट अ फॉर्मूला, और फॉर्मूला भी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है. ठीक है, तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है आप लोगों से, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एग्जाम, please do not leave this topic, because it will give you 2 to 3 marks. Okay, and one more is that generally आप, if you are preparing for the gate exam, तो आप लोग क्या करिए कि जब भी गेट एग्जाम प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो आप ये देखिए कि विच वाज द ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट. ओके, जैसे 2001 का एग्जाम है, तो वो किस आईआईटी ने कंडक्ट कराया या फिर आईआईसी ने कंडक्ट कराया. ठीक है, तो next, like for an example, if you are preparing for gate 2021, okay, that is the organizing institute is IIT Bombay. तो IIT बॉम्बे ने जितने भी पहले गेट एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं, आप लोग क्या करिए कि उन प्रॉब्लम्स को अच्छे से करिए, और ट्राई करिए कि उसमें और एडिशन क्या किया जा सकता है. मीन्स जो भी डेटास आपको गिवन रहता है, ठीक है, जब हम घर पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो हम लोग ठीक है, हमें पता है कि यार लाइक जो भी पूछा है, वट एवर द डेटा इज गिवन, जस्ट पुट द फॉर्मूलाज एंड गेट द वैल्यू. ओके, हम लोग सिर्फ इतना ही करते हैं. बट इफ यू रियली वांट टू क्रैक द एग्जाम, गेट एग्जाम स्पेशली, देन जो भी डेटा आपको गिवन है इन प्रॉब्लम्स में, आप विद रिस्पेक्ट टू दैट फॉर्मूलाज और क्या वैल्यूज हैं जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट विल गिव यू द एडवांटेज of thinking basically. Okay, and when you will appear in a gate exam, that time your mentality will be like that. Okay, so it's my personal suggestion, and ज्यादा time spend नहीं करते हैं और start करते हैं. Okay, so first problem that has been asked in gate 2001, by that was conducted by IIT Kanpur. So during, sorry, during orthogonal cutting, आपको क्या है कि orthogonal cutting दिया है, and during that machining is done on the mild steel. Okay, and rake angle is given to you, that is 10 degree. So rake angle हम लोग represent करते हैं alpha, in terms of alpha, so that is 10 degree. And the chip thickness ratio was obtained as 0.4, means chip thickness ratio is given as R, and the value of that is given to you, that is 0.40. Okay, अगर आप chip thickness ratio की बात करेंगे, तो it's a ratio of T by TC. Okay, so where T is the uncut chip thickness and TC is the chip thickness. Generally, this TC value always be greater than T, so that's why this ratio will always be less than 1. Okay, so now what we have to evaluate, the shear angle in degree. Okay, so what are the first of all, whatever the data that is given to you, आप लोग क्या करिए कि possibilities find out करिए कि आपको find out जो करना है, उसके रेस्पेक्ट में फॉर्मूलाज क्या अवेलेबल हैं आपके पास. ठीक है,
तो सबसे जो बेसिक फॉर्मूला है इस प्रॉब्लम के लिए वो अवेलेबल है, दैट इज tan phi इक्वल्स टू r cos of alpha अपॉन 1 माइनस r sin alpha। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में देखिए कि आपको अवेलेबल क्या क्या है, मीन्स क्या क्या दिया गया है। फाई जो है दैट इज शेयर एंगल, वो तो हमें फाइंड आउट करना है। आर जो होता है दैट इज चिप थिकनेस रेशियो, and alpha is the rake angle. So R and alpha both are unknown and both is given to you. Okay. So what we have to find out? Phi. So जब आप इसको values put करेंगे, that is tan phi equals to R, that is 0.40 into cos of 10 degree upon 1 minus R, that is 0.40 into sin 10 degree। ठीक है, अब क्या करिए, मेरा पर्सनल सजेशन ये है, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डायरेक्टली इस इक्वेशन को कैलकुलेटर में रख देते हैं और दे ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। ओके, बट मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप लोग क्या करिए कि जो न्यूमरेटर में है पहले उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करिए, देन डिनोमिनेटर की वैल्यूज को फाइंड आउट करिए। ठीक है, फिर डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैं जनरली आपको इसलिए नहीं कहने के लिए कह रहा हूँ, बिकॉज समटाइम्स जो ब्रैकेट होते हैं वो हमें लगाना बहुत नेसेसरी होता है। जब आप इस इक्वेशन को कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आप 5 to 6 ब्रैकेट आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप एक भी ब्रैकेट लगाना भूल गए तो प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस और डिवाइडर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इट्स माय पर्सनल सजेशन दैट यू फाइंड आउट द वैल्यू इंडिविजुअली। ओके, तो tan phi नेक्स्ट जो स्टेप होगी दैट इज tan phi इक्वल्स टू, जब आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, सो मैंने भी इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया हुआ है। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज 0.3939 अपॉन जो डिनोमिनेटर में है दैट इज 0.93054। ये इसकी पूरे की वैल्यू है, दैट इज 1 माइनस 0.40 इंटू साइन 10 डिग्री। ओके, पहले इसको कैलकुलेट करेंगे फिर इसको माइनस करेंगे 1 से। ओके, तो जो मुझे वैल्यू मिल रही है दैट इज 0.93054। ओके, जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो जो मुझे मिल रही है वैल्यू दैट इज 0.4233। ओके, सो दिस वैल्यू इज ऑफ tan phi। सो जब आप tan इनवर्स करेंगे दैट इज tan इनवर्स 0.4233, that will give you the value of 22.94। okay, that is in degree 22.94। so answer will be C। मेरा पर्सनल सजेशन एक और ये है इस वीडियोस के दौरान कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग खुद भी कैलकुलेटर और कॉपी पेन लेके बैठिए कि पहले जब भी हम किसी भी न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं तो आप खुद ट्राई करिए पहले उसको करने का और आंसर मिलाइए मेरे साथ अगर आपको आता है तो। और अगर कहीं मैं गलत हो जाता हूँ तो मुझे भी बता देना। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, लेट्स मूव टू द सेकंड प्रॉब्लम। Okay, so second problem is related with the theory। Okay, so in this problem the build up age is formed while machining। Okay, तो ये पहले जो प्रॉब्लम है दैट इज आस्क्ड बाय द आईसी बैंगलोर। तो इतना आसान तो नहीं होगा, ठीक है, सोचना पड़ेगा। इसमें दो कंडीशंस आपको गिवन है। फर्स्ट अबाउट द मटेरियल, कि मटेरियल डक्टाइल होना चाहिए या ब्रिटल। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू जो कंडीशन से गिवन है दैट इज लो स्पीड और हाई स्पीड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि बिल्डअप एज बनती कहाँ है। जनरली व्हेन देयर इज अ हाई फ्रिक्शन, ये जो हम टूल ज्योमेट्री, वर्कपीस टूल ज्योमेट्री कंसिडर करते हैं वही मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये आपका वर्कपीस है। इनिशियली ये पूरा था एक प्रिज्मेटिक बार कह लीजिए, ज्योमेट्री कह लीजिए। ठीक है, ये जो है दैट इज आवर टूल। ओके, नाउ जब टूल इज इन दिस डायरेक्शन लेफ्टवर्ड मूव करेगा तो आपका जो चिप्स रिमूव हो रहा है दैट इज लाइक दिस। ओके, सो ओवर द टूल दिस रन द चिप्स। ओके, नाउ जो टूल और चिप्स बिकॉज ऑफ इन दिस रीजन, तो जो फ्रिक्शन डेवलप होता है इन बिटवीन द चिप, दिस इज चिप एंड दिस इज टूल, तो जो फ्रिक्शन डेवलप होता है जनरली दिस फ्रिक्शन इज वेरी हाई। okay, and because of that the formation of the build-up edges start on the tool surface। okay, तो ये basically जब आप now we come to the what the data is what the options is given to you। तो brittle material की जब बात करते हैं तो brittle material is hard and ductile material जो होता है that is soft। okay,
जब हार्ड मटेरियल की आप बात करेंगे, तो हार्ड मटेरियल में क्या होता है कि अगर आपने कभी चिप्स देखी होंगी, आप किसी भी रेंज में काम करें, मतलब विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड आई एम सेइंग, तो जो ब्रिटल मटेरियल में जो चिप्स बनती हैं वो बहुत स्मॉल होती हैं। उनकी लेंथ भी छोटी होती है और उनकी थिकनेस भी बहुत कम होती है, ठीक है? तो जनरली बिल्ट अप एज जब बनती हैं तो दैट इज़ ड्यू टू द कंटीन्यूअस फ्लो। ओके, कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ द चिप ओवर द टूल। ये जब कंटीन्यूअसली चिप्स ओवर द टूल सरफेस फ्लो होती रहेंगी, तब यहाँ फॉर्मेशन होता है बिल्ट अप एजेस का। तो अब जब ब्रिटल मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं तो ऑलरेडी देयर आर वेरी स्मॉल थिकनेस, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि थोड़ा-सा मटेरियल रिमूव होता है, देन दिस इज़ अ, मटेरियल से हट जाता है, वर्क पीस मटेरियल से हट जाता है और टूल से भी हट जाता है, देन इट्स गो डाउन, ओके। तो ब्रिटल मटेरियल में तो बिल्ट अप एजेस बन नहीं सकता। तो नाउ वी कम टू द पॉइंट, डक्टाइल मटेरियल और सॉफ्ट मटेरियल। सॉफ्ट मटेरियल में 2 कंडीशंस हैं कि हाई स्पीड पे होगा या लो स्पीड पे होगा। अगर हाई स्पीड पे होगी, ठीक है? तो मीन्स जनरली अगर हाई स्पीड पे होगा तो जो भी आपने लेंथ चूज़ किया है, तो उसमें टाइम आपका बहुत कम लगेगा, ठीक है? अगर मतलब उसको कवर करने का टाइम बहुत कम लगेगा। जब टाइम कम लगेगा, तो ये जो आपका थिकनेस है, सॉरी चिप्स हैं, ये कंटीन्यूअसली मतलब बहुत फास्टली ही आपकी टूल मटेरियल से निकल जाएँगी, ठीक है? तो अब जब ये फास्टली ही टूल मटेरियल से निकल जा रही हैं, तो यहाँ पे रबिंग, चूँकि रबिंग जब होती है, यहाँ पे जब चिप्स मूव कर रही है ओवर द टूल, तो रबिंग हो रही है, ठीक है? बेसिकली दिस इज़ द टूल एंड ओवर दैट दिस चिप्स आर मूविंग आउट। तो अगर ये फास्टली ही रिलीज़ हो जा रही हैं, ठीक है? तो टेम्परेचर तो जनरेट हो रहा है, बट देयर विल द फ्रिक्शन बिकॉज़ ऑफ द राइज़ इन टेम्परेचर विल बिकम लेस, ओके? तो क्या होगा, बिल्ड अप एजेस नहीं बनेगी। अब वी कम टू द लो स्पीड। लो स्पीड पे जब रब करेगा, जो चिप्स हैं आपकी रब करेगी ओवर दिस टूल सरफेस, तो ओवर दिस टूल सरफेस, तो बिकॉज़ ऑफ रबिंग एंड बिकॉज़ ऑफ लो स्पीड, जो ये आपका कंटीन्यूअसली यहाँ पे फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूअसली यहाँ पे फ्लो होती जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी आपकी चिप्स यहाँ से निकल रही हैं, ठीक है? जो उसकी जब शेप को बॉटम साइड से जब आप उसको शेप को देखेंगे, तो देयर इज़ रफनेस, ओके, देयर इज़ रफ, ओके, कुछ रफनेस आपको मिलेगी। रफनेस क्यों मिल रही है? क्योंकि जो मटेरियल है, सम अमाउंट ऑफ द मटेरियल इज़ स्टक ओवर दिस सरफेस, ओके? This zone is basically we call it as a primary shear zone, and this is basically secondary deformation zone, or sometimes we also call it as a secondary shear zone, okay? तो ये जो आपका secondary shear zone है, इसमें क्या होगा, continuously जो low speed पे जो chips flow होती जा रही हैं, वो मटेरियल क्या होता है, यहाँ पे स्टक होता जाएगा। अब जब मटेरियल कंटिन्यूअसली स्टक होता जा रहा है एंड देयर इज कंटिन्यूअसली रबिंग, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, हीटिंग होगी। अब उस हीटिंग की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो मटेरियल रिमूव हो रहा है बिकॉज ऑफ फ्रॉम दिस चिप्स, ओके, वो क्या होता है, यहाँ पे इकट्ठा होता जाता है, मतलब कलेक्ट होता जाता है, ठीक है? जब ये यहाँ पर कलेक्ट होता जाएगा तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या होगा, एक के ऊपर एक पार्टिकल्स बनते जाएंगे। नाउ दे विल फॉर्म अ वेज शेप स्ट्रक्चर, ओके? नाउ दिस वेज शेप इज ऑल्सो हैव सम लिमिट, बिकॉज ये मटेरियल का पार्ट नहीं है, बट ड्यूरिंग द मशीनिंग ये बना है, ठीक है? तो ये जो वेट शेप बनेगी, देयर इज सम लिमिट टू इसकी जो विड्थ होगी, मतलब इसकी जो हाइट होगी यहाँ से, उसकी कुछ रेंज होगी, ठीक है? बट एज दिस चिप इज कंटिन्यूअसली कमिंग आउट, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि ये जो वेट शेप है ये स्टक हो जाएगी और रिमूव हो जाएगी अलोंग विद द चिप, ओके? बट ये जो वेट शेप यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, दिस वेट शेप ओनली कॉल इट एज अ बिल्ट अप एज, ओके? सो दिस इज द बिल्ट अप एज। नाउ एज आई सेड कि जब भी आप क्वेश्चन प्रॉब्लम्स को सोल्व करें तो आपको दूसरी अप्रोच भी यूज करनी है कि मतलब व्हाट आर द अदर पॉसिबिलिटीज। तो फॉर एन एग्जांपल, अगर इसी क्वेश्चन में आपको डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल ही दिया रहता बट स्पीड की रेंज में ना देखे, आपको दिया रहता हाई फीड, लो फीड, ओके? तो हमेशा इसके अलावा, स्पीड के अलावा जो दो कंडीशंस है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ फीड एंड इन टर्म्स ऑफ रेक एंगल for the built up page, okay? तो feed जो होगी that is always high and rake angle जो होगा that is always low, okay? So these are the two condition apart from the speed, so please keep in mind, okay? So let's move to the next problem. Okay, so this is basically a common data problem asked in GATE 2003 by conducted by IIT Madras.
Okay, so first is a cylinder. A cylinder is turned. Turn means turning हो रही है. Okay, on the lathe machine, and we are considering it as a orthogonal machining. Okay. Now RPM is given to you. Spindle RPM, that is 200 RPM. Axial feed is given to you. So feed is 0.25 mm, 0.25 mm per revolution. Okay. हमेशा टर्निंग में फीड जो होती है, especially in this metal cutting operation, that is always in mm per revolution. Please keep in mind. This is different for the shaper milling. So please keep in mind, for the metal cutting operations, we always take in mm per revolution. Okay. Depth of cut is given to you, that is 0.4 mm, and rake angle is given to you, that is 10 degree. Okay. Apart from this, the shear angle is also given to you, that is shear angle is 5. Okay, that is 27.75 degree. And first of all, the chip thickness in the first problem, that is chip thickness, we have to find out the thickness of the produced chip. Okay. So value of TC we have to find out. So for that, we are using this R equals to T by TC. We have this formula. Okay. But in this formula, R is the chip thickness ratio, T is the uncut chip thickness, and TC is the chip thickness. This value we have to find out. Okay. But for that, we need this value of T and R. तो इसमें क्या है कि हमें ना तो R गिवन है, ना ही TC गिवन है. ठीक है. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी, देन वी हैव टू पुट इन दिस फार्मूला. तो R जो फाइंड आउट करना है, उसके लिए जो कंडीशन है, दैट इज के tan phi इक्वल्स टू R cos of alpha upon 1 minus R sin alpha. Now we have to check. R हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से. तो क्या phi हमें गिवन है? यस, phi is 27.75 and alpha is 10 degrees given to us. Okay. तो पहले क्या करते हैं हम लोग, इस इक्वेशन से R फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है. जब तो हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज 10 27.75 इनटू ये जो टर्म है, इस टर्म को मैं इधर लेके आ रहा हूँ. ठीक है. तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे. जब मल्टीप्लाई होगा तो दिस इज 1, सॉरी, ओके. जब तो ये जो इक्वेशन होगी, दैट इज 1 माइनस आर, वी हैव टू फाइंड आउट इनटू साइन अल्फा, दैट इज 10 डिग्री. Okay, equals to R cos of alpha. So cos will cos 10 degree. Okay. Now when you will calculate, you will get this value. What I'm getting is 1027.75 is 0.5261. Okay. And 1 minus R sine 10. Sorry. Sine 10 value, what I'm getting is 0.1736 R. Okay. And cos 10, that is 0.9848 into R. Okay. Now, what I'm doing is, in next step, I'm just multiplying this value inside of this. Okay. So this will give you into 1. So this is 0.5261. And whatever the value, when I will multiply this 0.5261 को इससे जब multiply करेंगे, तो minus में आएगा. तो चूंकि ये R के साथ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी इक्वेशन, जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आ रही है, मैं उसको इधर भेज दे रहा हूँ. ठीक है. तो जो वैल्यू आएगी, दैट इज 0.09133 R. ये तो इसकी मल्टीप्लाई करने से आया, प्लस इधर कितना है, 0.9848 R. दोनों को ऐड करूंगा तो ये जो वैल्यू आ रही है मेरी, दैट इज 1.0761 R. ओके. नाउ this is 0.5261, and in right hand side this is 1.0761. So I can get the value of R from here, and what I'm getting is 0.4889. Okay. Now this is the value of R, but we need this TC as well. Okay, in this formula. So how we will get the TC? प्लीज कीप इन माइंड दैट इस क्वेश्चन में आपको टर्निंग दिया है. ठीक है. जब भी आप टर्निंग की बात करते हैं, तो टर्निंग में कन्वर्जन होता है, जो अनकट चिप थिकनेस होती है, दैट कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ द फीड, एंड जो विड्थ होती है, दैट इज कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ द डेप्थ ऑफ कट. ओके. नाउ जो कन्वर्जन होता है, अभी मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, बट कन्वर्जन होता क्या है वो सिंपली मैं लिख देता हूँ. दैट इज T इक्वल्स टू अनकट चिप थिकनेस इक्वल्स टू F इंटू साइन
lambda. Now this f is the feed, that is in mm per revolution, and lambda is basically the approach angle. Okay, now this approach angle in terms of cs अगर हमें calculate करना है, that is 90 minus cs. बट इसमें अभी डिटेल में नहीं जाते हैं हम लोग. तो अगर आपको कुछ भी नहीं गिवन है, आपको सिंपली ये गिवन है कि दैट इज ऑर्थोगोनल कटिंग. तो ऑर्थोगोनल कटिंग का केस है, तो इसमें आपको 90 जो अप्रोच एंगल है दैट यू हैव टू कंसीडर एज अ 90 डिग्री. ओके, नाउ व्हेन यू विल कंसीडर इट एज अ 90 डिग्री, तो sin 90 कितना होता है 1. ओके, तो t वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी f के. नाउ f वैल्यू कितनी है 0.25 mm पर रिवोल्यूशन. बट अब आप कन्वर्जन कर चुके हैं, तो mm पर रिवोल्यूशन में ना रह के वो सिर्फ वैल्यू रहेगी आपकी mm में. प्लीज कीप इन माइंड. ओके, तो यहाँ से आपको t की वैल्यू मिल गई, यहाँ से आपकी r की वैल्यू मिल गई. तो आपको क्या r इक्वल्स टू t बाई tc. तो tc की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से tc इक्वल्स टू t बाई r. तो t की वैल्यू कितनी है 0.25 अपॉन r की वैल्यू कितनी है 0.4889. ओके, तो ये जो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो what I am getting is this is 0.5113 mm. Now this will be in mm. Okay, so आंसर चेक कर लीजिए. अप टू 3 डिजिट ही दिया है, तो आप ट्राई करिए कि हमेशा 4 डिजिट तक कैलकुलेट करने का, बिकॉज उसमें क्या होता है कि अगर इफ देयर इज अ मोर देन 5 नंबर, तो आप उसको ऐड करना रहेगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन. ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ सेम प्रॉब्लम. In the second problem, the coefficient of friction at the chip tool interface. Okay, जो friction होता है, that is obviously at the tool chip interface. Okay, now we have to find out the value of mu. Okay, now first of all क्या करिए कि जो भी possibilities हैं, क्या formulas आपके पास available हैं, उनसे try करिए. ठीक है, वो ट्राई करिए पहले. तो म्यू जब फाइंड आउट करना होता है, तो हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं, दैट इज 10 बीटा. ठीक है, तो उसके लिए हमें बीटा तो गिवन नहीं है. ठीक है, और उसके अलावा क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि एफ बाई एन. एफ जो होता है आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है, एंड एन इज द नॉर्मल टू दैट फ्रिक्शन. ओके, बट एफ में कैलकुलेट कर सकता हूं जब मुझे एफ सी आपका कटिंग फोर्स या फिर एफ टी, मतलब दोनों ही दिए हों. ठीक है, एफ सी और एफ टी की वैल्यू गिवन हो, या फिर एफ एस या फिर एफ एन की वैल्यू गिवन हो, और सिमिलरली फॉर द एन एज वेल. बट ना इन दिस क्वेश्चन एफ सी और एफ टी नहीं दिया है. ठीक है, अब अगर एफ सी और एफ टी नहीं दिया है, तो हम लोग ये जो पहला फॉर्मूला हमने लिखा है इसी पे वर्क करते हैं. हम ट्राई करते हैं कि बीटा की वैल्यू कैसे मिले. तो इसमें लिखा है कि फॉर दैट यू कैन यूज दिस अर्नेस्ट एंड मर्चेंट थ्योरी. अब अर्नेस्ट क्या होता है? ठीक है, मर्चेंट थ्योरी तो मुझे पता है. अर्नेस्ट मर्चेंट थ्योरी कुछ नहीं होती, जो भी आप मर्चेंट सर्कल डायग्राम के थ्रू फॉर्मूलाज फाइंड आउट करते हैं, वो सब अर्नेस्ट एंड मर्चेंट थ्योरी के ही होते हैं. ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. तो जब आप मर्चेंट थ्योरी यूज करेंगे, तो एक हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, दैट इज 2 फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री. ओके, तो इस फॉर्मूला में क्या है, फाई की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है, तो यहाँ से बीटा मिल जाएगा, दैट इज 2 इंटू 27.75 प्लस बीटा माइनस अल्फा दैट इज 10 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 44.5 डिग्री. प्लीज कैलकुलेट करना, क्योंकि मैं गलत भी हो सकता हूँ कभी कभार. ठीक है, तो मैंने जो कैलकुलेट की है दैट इज 44.5 डिग्री. नाउ म्यू इक्वल्स टू 10 बीटा, मुझे चाहिए म्यू. तो बीटा की वैल्यू है 44.5 डिग्री. तो मैं इसको जब कैलकुलेट करूंगा, तो मुझे मिल रहा है दैट इज 0.9826. ओके, तो मैंने अप टू 4 डिजिट फाइंड आउट किया है, बट इसमें अप टू 2 डिजिट ही दिया है. सो आंसर इज डी. तो इन दिस वीडियो में हम लोग यहीं तक रुक जाते हैं. जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ प्रॉब्लम से. ओके, so thank you so much guys.